Pradeep Gupta, many politicians say that they do not know about the results, that every time there is an election result, more or less, the party that wins is also surprised, the party that loses is also surprised. What is it that you do to get it so bang on right, sir? Congratulations for getting Karnataka right. Thank you very much, Maria, for having me here. We try and understand and meet people, and there are only three things. One is to reach to them, the people, the common man, the voters. Second is to try and understand or connect with them and try and understand what is there in their mind, the kind of insight. And whatever they say, we do kind of analysis, make the sampling, we call it representative, and come out with the number and put the number on the board. This is what we simply do every time. But in that simple thing that you said, even the Congress this time said that, we never expected that the victory scale would be so huge. So my question to you, sir, is this anti-incumbency or pro-Congress vote? So any election for that matter, Maria, there are three very basic thing. One is the, I call it Dave, Wade and Irade. When I say Dave, which is the claim by the incumbent government, and whatever they have done, the performance in last 5 years, they try and claim those Daves. And the other side is the challenger. They have nothing but to come out with the promises. If you elect us, and whatever the promises we are doing today, we will try and fulfill them. And basis on these two very basic element, people make their choices, whatever may be the choices. So whatever claim or the promises last year these incumbent government must have made, people see and evaluate them very carefully, believe me, very carefully. And if they see it is not in line, they change the government. It is so simple. And so whatever you call it, the anti-incumbency is the result of this only. Whatever you made the promises 5 years back and how you have delivered and whatever your performance is, if it is not in line, they change their sides. One. Two, once there is an anti-incumbency, people want to change. What is most important at this very juncture is the what is the alternate available to them. And when I say alternate, it has to be a credible alternate. So they believe in it. So now coming to the Karnataka, people of Karnataka have witnessed three different government of three different parties in last 5 years. The first year started with the government of HD Kumaraswamy JDS in alliance with Congress. After that, scenario got changed and Yadurappa ji and BJP Sarkar came in the power. And after roughly 2.5 years, again Yadurappa ji was changed and BJP changed their chief minister to Basavaraj Bombay. So in last 5 years, and of course above and over and above, the COVID was there. In last 5 years, people of Karnataka have seen three different types of government, and they were not satisfied at all. Now coming to the other side, 5 years before back, they have also seen the government of Siddaramaya, Congress government, for last 5 consecutive years, and they found that governance or that government or that person for that matter was far better than these three governments, and this is where they made the choices. बट प्रदीप जी, दावे, वादे और इरादे, जो आपके तीन बेसिक पैरामीटर्स जो आप बोलते हैं, इस पर तो सारे चुनाव होते हैं, बिल्कुल होता। लेकिन एक्यूरेट कैसे रिजल्ट्स आता है? आपका रेंज जो है उसी में बीच में बैंग ऑन सही हो जाता है। नहीं, देखिए उसका कारण ये मारिया कि हमारी एक्सिस माई इंडिया की टीम सिर्फ एग्जिट पोल के दिन ही काम नहीं करती है, वो कम से कम 1 साल तक ग्राउंड रियलिटीज और ग्राउंड को तलाशने की कोशिश करती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन दीज सब्जेक्ट्स ओनली, what were the people's expectations, need, aspirations, and we try and ask them who you think is likely to fulfill them or address them. And whatever they say, at least 4 to 5 times, we go to each and every constituency of any state for that matter. And when I say state,
assembly, I am referring 224. No, I am referring at least 10 major villages, cities, and towns of that assembly constituency, which is representing at least 60 to 75% population of that particular constituency. So we go there, we try and understand them, what are their needs, and whatever they say, and we keeps on building it. And the other side, these political parties do their own work, and basis that they make the choices. And it's not exit poll day job, it's the complete full year job, let me tell you. But you don't bring out opinion polls. Axis only puts out exit polls. Precisely. Why? Because in opinion poll, there can always, even in exit poll, there can only be one party who can come victorious. जो 4 से 5 दूसरी पार्टियां हैं, या 2 कम से कम दूसरी जो पार्टी है, वो उनके जो खासकर कार्यकर्ता हैं, when we go, as I mentioned to you, at least 4 to 5 times during 1 year, they start and targeting our people, both sides, so positively also and negatively also. कई बार बोलेंगे हाँ यहाँ से जरा सर्वे कर लेना, आप यहाँ से सर्वे कर लो। कई बार होगा अच्छा हमको हारते हुए दिखाया, देखते हैं कि अगली बार आप कैसे घुसते हो। आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारी टीम हर अल्टरनेट डे पे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हिसाब से पुलिस स्टेशन पर, हर अल्टरनेट, क्योंकि वो आके लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले लोगों को ये बता पाना कि हम भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए नुमाइंदे नहीं हैं, हम आपके समक्ष आए आपको समझने के लिए, आपकी ज़रूरतों को समझने के लिए। डिस्पाइट ऑफ दैट यू विल ऑलवेज फाइंड 5 to 10% काइंड ऑफ एलिमेंट्स, दे मेक रकस आउट ऑफ इट, कि आप तो पार्टी के भेजे हो, आप तो इस चैनल में तो ये होता है, उस चैनल में तो ये होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड वी फेस ऑन द ग्राउंड। सो एग्जिट में इतनी समस्या है, तो आप सोचिए कि यदि हम ओपिनियन पोल हाँ, क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ओपिनियन पोल करने में फिर ये भी होता है कि पार्टियों के साथ भी नाराजगी होती है, पार्टियों की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, सबको लगता है कि मुझे जीतता हुआ दिखाना चाहिए। तो इसी की वजह से हम ओपिनियन पोल नहीं करते। और एक बार जब आपने ओपिनियन पोल में नंबर दिखा दिए या लाइन ले ली, उसके बाद उस लाइन को ठीक है चेंज करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो ठीक भी नहीं लगता कि पहले आप ये दिखा रहे थे, बाद में आप ये दिखा रहे हैं और पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो सारा का सारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए बेटर टू अवॉइड दैट। और एग्जिट पोल के दिन इसी के चलते हम जो भी नंबर आते हैं वो भले कितने बोल्ड हो या लाउड हो, उसको फ्रीली रख पाते हैं। प्रदीप जी, आप एग्जिट पोल में जब डेटा पुट आउट करते हैं, उसके अलावा आप ट्रेंड भी दिखाते हैं, इन द सेंस जो पॉपुलर नैरेटिव है या मीडिया नैरेटिव के कॉन्ट्ररी व्यूज भी होते हैं ज्यादातर, in terms of why people are voting in a particular way. So my question is, will it be correct to say, first, that the Lingayats have moved away from the BJP to the Congress? Second, that the Congress has consolidated its Vocaligas, particularly in the old Mysuru belt, and in many ways, the JDS vote of Vocaligas has moved from JDS to the Congress, and that is the reason why the JDS is below 20. And also, this was a localized election fought on local issues. Now you are talking about why the verdict is the way the verdict is. Let me tell you, there are, of course, one is the Karnataka region wise it varies. The political preferences and political parties preferences is different. First is the region wise people were voting differently, and they've been voting traditionally, differently. Second is that the कास्ट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक के अंदर खासकर कहा जाता है कि कर्नाटक का जो कास्ट इक्वेशन है या कास्ट के हिसाब से जो अलाइनमेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बिल्कुल यूपी और बिहार की तरह है। तो एक दूसरा बड़ा फैक्टर है कास्ट। तीसरी बड़ी डेमोग्राफी जो है वो है रूरल अर्बन
एंड उसके साथ भी जेंडर, जो कि हर एक इलेक्शन के अंदर इंडिया के अंदर जेंडर का बहुत बड़ा रोल है। व्हेन वी से जेंडर, ये एक ऐसी डेमोग्राफी है बिल्कुल बैंग ऑन 50-50% है। बाकी सब में तो कुछ ज्यादा कुछ कम हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव, बट इसके अंदर बिल्कुल 50-50% है। तो इन तीनों के तीनों ने असर किया। मैं एक के बाद एक बताने की कोशिश करता हूँ। 6 रीजन है कर्नाटक के अंदर। ओल्ड मैसूरू, जो हम रियासतों के नाम से 3 बड़े रीजनों को जानते हैं, बॉम्बे जी कर्नाटका और हैदराबाद जी कर्नाटका, ये तीनों की सीटों को मिला लें 64, 50 और 40। 40 जो है हैदराबाद कर्नाटक, 64 जो है वो ओल्ड मैसूरू, एंड बॉम्बे कर्नाटक के अंदर 50 सीट्स, which contributes 154 seats, which means 70% of state is in these 3 regions. And all these 3 regions traditionally voting differently. In the sense, Bombay, Karnataka, always, even in last election, BJP came out victorious with thumping of यस 30 seats out of 50. So BJP is the dominant force here. Hyderabad, Karnataka, Congress is the dominant force. And in Old Mysuru, out of 64 seats, JDS won last time 26 seats, and Congress won 21 seats. And BJP was distant third with 15 seats. In terms of vote share, see what is the state of BJP in this is the distance third. In the sense, JDS and Congress secured 35% vote each, and BJP 21%. See the difference, 21 to 35%, 14 percentage gap between these two party and BJP. This is the scenario. What had happened this time? People have seen JDS government also, I have told you. BJP government also, that too with 2 chief ministers. They decided this time no hung assembly. So that is the reason why JDS reduced from 37 plus 1 of BSP. They fought election in alliance with BSP last time to 19, जी exactly half. Exactly half. This is where the real story lies. And that is the reason why you see the Congress vote share increased from 38 to 43 percentage, whereas JDS vote share reduced in alliance with BSP 19% to 13.5%. 19% बट to 13. बीजेपी का नहीं रिड्यूस हुआ, बीजेपी का रिड्यूस हुआ, बट खाली 1%। लेकिन सर वो 1% में कितना डाउनस्लाइड है इन टर्म्स ऑफ सीट कन्वर्जन? मैं अभी वो बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का लग रहा है ऐसा है सबको कि 1% हुआ कम, लेकिन हकीकत ये है कि ओल्ड मैसूरू रीजन में 21 से बीजेपी का वोट शेयर 24 चला गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो जेडीएस की जो वोकल लीगा वोट थे उसका लॉयन शेयर बीजेपी की तरफ गया और स्मॉलर शेयर जो है वो कांग्रेस की तरफ गया। वेयरएज बाकी जो अदर कास्ट है, दलित, पिछले बार बीएसपी, इस बार बीएसपी ने अलग से चुनाव लड़ा 144 सीटों पर। तो दलित, आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड कुर्बास, ये जो वोट मिला था इसका लॉयन शेयर 2/3 जो है वो कांग्रेस की तरफ गया और 1/3 जो है बीजेपी, जो कि सारा का सारा डिफरेंस आपको लगा। वेयरएज ओल्ड मैसूरू में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, सब्सटेंशियल बढ़ा है, बेंगलोर में भी बढ़ा है। बेंगलोर भी ओल्ड मैसूरू से एडमिनिंग लगा हुआ है, तो उसमें सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है बीजेपी के वोट शेयर में। वेयरएज बाकी के 4 रीजन और जो सबसे बड़ा उनका बॉम्बे कर्नाटका रीजन है उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट है। रह गई बात लिंगायत की, आपने पूछी, तो लेट मी टेल यू, मैं आपको कोशिश करता हूँ कर्नाटक के कास्ट अर्थमेटिक को समझाने की। एसटी, एससी, मुस्लिम, कुर्बा, क्रिश्चियंस, ये सारे मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं 50% पॉपुलेशन। लिंगायत, ओबीसी, जनरल यानी अपर क्लास, उसमें आपके ब्राह्मण्स भी आ गए, वो सारा कुछ मिलके 35%, 50%, 35% एंड 15% है वोका लीगा वोट, जो कि बिलोंग करते हैं ट्रेडिशनली जेडीएस को। तो आप देखिए 50, 35, 15, इसी के चलते आज तक बीजेपी की 110 सीटें एट बेस्ट कभी भी अपनी मेजोरिटी नहीं आ पाई थी आज तक, कभी भी नहीं।
2-3 बार सरकारें भी बनाई पिछले 30 साल में, लेकिन कभी भी मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो अभी भी जो है लिंगायत का वोट हमारे उसके अंदर नो चेंज, 1% का भी पिछले वोट से अभी में फर्क नहीं है लिंगायत का। नहीं पिछले है बार तो जो 64% बीजेपी को मिले थे, अभी मिले थे। बड़ा जो फर्क आया है वो आया हुआ है ट्राइबल्स के वोट कांग्रेस के 4% बढ़ गए, बड़ा फर्क। एससी में जो कि इतना बड़ा जंप हुआ कि आप सोच नहीं सकते, 14% वोट शेयर पड़ा कांग्रेस, 14%, जो कि बड़ी संख्या में बीजेपी और जेडीएस को दिया था पिछली बार। कुर्बा का चूंकि सिद्धारमैया उससे आते हैं तो 4% बढ़ना ही बढ़ना था। मुसलमान जो है कंसोलिडेशन हुआ, जिसने कि इस 2 रीजन में, बेंगलोर में और इधर पे वोट दिया था उन्होंने जेडीएस को। मुसलमान का वोट शेयर कांग्रेस के फेवर में 10% गया। 10% बहुत बड़ा मायने रखता है। 88 से इस बार मिल रहा है, पिछली बार उनको 78% के आसपास मिले थे। तो ये जो बड़ी कहानी है कांग्रेस के वोट शेयर में, So I ओबीसी का, think this is the story. This is दिस the इज story that you told me. It is not about the Lingayat because the Lingayat vote hasn't moved. It is not about the Vokaligas. It is about the SCs, the tribals, एससीज, and the ट्राइबल्स, Muslims, मुस्लिम्स और Kurubas. क्रिश्चियंस और कुर्बास जो है वो वैसे भी कांग्रेस की तरफ रहते हैं, बट उनकी संख्या बढ़ गई। जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा, देखिए सारे बीजेपी के नेता हो या सारा मीडिया हो, वो लिंगायत लिंगायत की बात करता है। अरे भाई, Right. लिंगायत 15% है। 15% से कोई सरकार नहीं बन सकती, कोई जीत नहीं सकता कभी भी, जब तक कि उसके अंदर ओबीसी का, जनरल क्लास का, SC STs का समावेश नहीं होगा। बीजेपी के वोट शेयर आ ही नहीं सकते हैं 35-36% को, वही आ रहे हैं जो 35 आपको मैंने जो बताया, उससे कुछ नहीं Then, होता। then Pradeep ji, because you're breaking myths in this conversation about the big takeaways, do you think then that Bajrang Bali ban was part of a Congress strategy because they wanted to move away from what was appearing to be a triangular contest into a bipolar contest? नहीं, देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, किसी भी रिलीजियस मैटर से हिंदुस्तान में हिस्टोरिकली आजादी के समय से लेके आज तक कोई भी इलेक्शन निर्णायक तौर पर जीते या हारे नहीं गए। लेट मी टेल यू वेरी Okay. फ्रैंकली, वेरी Okay. विद फुल कन्विक्शन आई एम टेलिंग यू। हम और आप मीडिया में, मैं भी मीडिया का पार्ट हूँ, हम और आप मीडिया में इन सब विषयों की बातें करते हैं जो कि हमारे कान में रहते हैं। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, आप मेरी बात मानिए, और आप सबसे ज्यादा उस चीज को देखती है और कवर करती है कि यदि उनका स्पीच जितने भी मिनट का, 30 मिनट का हो, 50 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, आप ये मानेंगे कि उसमें वो जरूर रिलीजियस या मैटर की बात करते होंगे, बट वो 10 से 20% की बात से ज्यादा मिनट उसको नहीं देते हैं। लेकिन हमारा मीडिया का ये काम है कि जो अच्छे काम किए हुए हैं, जो डिलीवरी है, वो किसी को नहीं देखनी है, सबको इसी तरह के मसाला देखना है, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट देखना है। रादर लेट मी टेल यू, इंफोटेनमेंट देखना। हमारे घर के बाजू में लड़ाई हो जाती तो हमारे सबके कान और आंख उस पर लग जाते हैं। हाँ, घर बाजू के घर के बच्चे ने यदि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया तो हाँ यार बहुत अच्छा काम किया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सबसे कभी भी चुनाव ना जीते जाते हैं ना हारे जाते हैं। आपको अच्छे से पता है 2015 के बिहार इलेक्शन में भी पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे से लेके, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग से लेके, बंगाल के अंदर जो भी होता है, वो मीडिया में सबको मजा आता है, सब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उससे नहीं होता। सरकार, जनता और नेताओं के बीच, वोटर और नेताओं के बीच एग्रीमेंट होता है। वो किसी वादे के साथ, किसी प्लान के ऊपर अपना वोट सीक करते हैं और वोटर अपना एंडोर्समेंट करते हैं, और जो एंडोर्समेंट हुआ है वो उसको 5 साल में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं कि आपने क्या कहा था और क्या किया, व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू डन, बड़े अच्छे से देखते हैं। क्योंकि जो 100 वोटर पड़ते हैं डब्बे के मशीन के अंदर, 100 जो भी वोटर टर्नआउट मान लिया जाए 73 रहा, तो जो 27 नहीं आए वोट करने, छोड़ दीजिए उनको, 73 जो वोट करने के लिए आए और जो मशीन के अंदर बंद हुए, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, एवरेज, ऑल इंडिया एवरेज 80% जो लोग होते हैं, 80% जो वोट आए हुए हैं उसके अंदर, उनका जीवन जो है, उनकी लाइवलीहुड जो है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर डिपेंड करती है। तो बड़े केयरफुली वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है, उनको इस What सब about चीजों। the women voters?
हाँ, अब जब मैंने कहा बड़े केयरफुली उसको करते हैं, तो जो वुमेन वोटर है आज तो ओवरऑल वोटर्स के लिए, बट हिस्टोरिकली इंडिया ये कहा गया कि पुरुष प्रधान देश है, ठीक। हम हम्म ये कहते हम्म क्यों? हम्म इसीलिए कि कंट्री के अंदर पहले समय में 90%, आज से हम्म 40 साल पहले 90% के ऊपर जो है घर का मुखिया जो होता था, उसके घर का जो मेन इनकम सोर्स होता है, जिसको CW कहते हैं, चीफ वेज अर्नर, वो मेल फैमिली लेता था। बट वो धीरे धीरे करके जैसे एजुकेशन बढ़ी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे लोगों के बीच में जागरूकता जागरूकता आई महिलाओं के बीच में, तो ये परसेंटेज उठ के अब करीब करीब 60 to 70% आ रहा है, ठीक। बोलने का मतलब हुआ जो घर के अंदर जो महिला है, जो कि उसका जीवन पुरुष के इनकम के ऊपर डिपेंड है, जैसे मैंने कहा 80 वोट जो पड़े उसमें बड़ा गवर्नमेंट के ऊपर भी, गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर भी डिपेंड करता है उनका जीवन, तो उसमें जो बेनिफिशियरी एंड पे कौन है? महिला ही। जी तो आप जितनी भी सुविधाएं देखेंगे, चाहे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो, पहले जमाने में पुरुष के हाथ में ज्यादा करके पैसे चल, पुरुष अपनी मर्जी से अपने हिसाब से पैसे को खर्च करता था, महिला जो है एक हाशिए के ऊपर। उसके बाद अब जो है पिछले 8 से 10 साल में ये बड़े लेवल के ऊपर हुआ है कि जितनी भी चीजें आप जन धन अकाउंट, वो कहने को जन धन अकाउंट है, बस साहब वो जन धन अकाउंट नहीं है। वो अकाउंट बना और अकाउंट में जब मनी ट्रांसफर किया और जब महिला के हाथ में पैसा आता है, आप खुद एक महिला है, तो आप कितना एम्पावर होती है यस उसकी कल्पना आप कीजिए कि किसी महिला के नाम पे यदि घर हो जाए तो उसके जी एम्पावरनेस की कल्पना कर हम्म सकते हैं आप। हम्म हम्म उसके घर के चूल्हा, जो चूल्हे में जितनी तकलीफ होती है और उसको यदि सिलेंडर से मिल जाए, उसकी कल्पना कर सकते हैं आप कि लकड़ी और कोल के अंदर खाना बनाना कितना मुश्किल जी काम है, टॉयलेट के लिए बाहर जाना कितना मुश्किल काम है। तो ये जो सारी चीजें थी, अब बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी महिला को अब ये बिल्कुल पता है कि ये जो रोड है, ये इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है कि स्टेट गवर्नमेंट हाँ जिम्मेदार है कि नेशनल हाईवे है तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं, उसको महिलाओं को अच्छे से पता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके अच्छे होने या इसके खराब होने। तो महिलाओं का वोटर जो है निर्णायक साबित होता है इस चुनाव के अंदर भी। जैसे अभी तक बीजेपी को महिलाएं बाकी पिछले 2 साल की या 10 साल की बात कर लें, शिद्दत से जिताते आई है, इस चुनाव में महिलाओं का वोट कांग्रेस को 44% पड़ा और हम्म पुरुषों का वोट कांग्रेस को 40% पड़ा, यानी कि 4% महिला ज्यादा कांग्रेस के ही हम्म वोट। बट यहाँ बट स्टोरी व्हाई खत्म, सर व्हाई मैं आ रहा हूँ उसी पे, यहाँ स्टोरी हाँ खत्म नहीं होती। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में महिलाओं का वोट शेयर 11% का फर्क, 33% बीजेपी को और 44% जो है कांग्रेस को। आप अंतर देखिए, 33 वर्सेस 44 महिलाओं में बीजेपी और कांग्रेस, वर्सेस पुरुष में 35% बीजेपी और 40% कांग्रेस, यानी केवल 5%। रियल जो फर्क है 11% का यहाँ पर है। अब आप इस क्यों, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैंने कहा कि महिलाएं के पास तो रिलेटिवली पुरुष से ज्यादा समय होता है देखने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए कि आपने हम्म पिछले 5 साल में जो भी मेरे घर के अंदर आया है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और उसके बाद महंगाई जो होती है, महंगाई की जो सबसे बड़ी विक्टिम है अगेन महिलाएं होती हैं। दैट्स ट्रू उसके बाद हम ये भी पूछते हैं कि आप साहब जिस भी पार्टी को वोट किया, क्यों किया? तो 100 वोटर जो कि बीजेपी को वोट किया, 100 वोटरों ने, उसमें से 41% ने कहा हमने डेवलपमेंट के लिए वोट किया बीजेपी को। उससे हम्म बड़ा सेकंड बेस्ट जो अभी हिस्टोरिकली कभी नहीं आया था, 19% लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हमने वोट किया। हम्म 13% ने कहा एमएलए कैंडिडेट जो है उसकी वजह से हमने लोकल लोग, और 11% पसंद की पार्टी, यानी कि यही पार्टी हमारी कोई भी हो हम इसको कहते हैं। ये हो गया बीजेपी के वोट से का लेखा जोखा। अब कांग्रेस का सुन लीजिए, देखिए सत्तर। कांग्रेस के 100 मतदाताओं में से 34 ने कहा हमने डेवलपमेंट की वजह से वोट किया, 10% ने कहा परिवर्तन होना चाहिए हमने उसलिए वोट किया, 9% ने कहा महंगाई की वजह से हमने कांग्रेस को वोट किया है, और 9% लोगों ने कहा जो कांग्रेस ने वादे किए हैं 5 खासकर
जिसमें से कि 4 जो है महिलाओं की तरफ स्क्यू है। चाहे बस फ्री हो, चाहे 2000 रुपये मिलने की बात हो, चाहे सिलेंडर की कीमत हो 500 रुपये, उसमें से बड़ा श्रेय जो आया 9% लोगों ने कहा, जो कि सेकंड बेस्ट है, बिकॉज ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय। तो इसके चलते महिलाओं का जो इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है, इसी की सबसे बड़ी वजह है। That's a very interesting point, because so far we were just thinking that the entire election was because of local issues, local candidates, BJP's, gamble, what paid off in Gujarat or in other states of changing and getting new faces did not work. While it worked because the Congress leaders like Siddaramaiah and DK Shiv Kumar kept it on local issues and those 5 guarantees. So ये जो आप बता रहे हैं वो जो पॉपुलर नैरेटिव और एनालिसिस चल रहा है वो तो है ही नहीं। ये तो मैंने कहा ना, जो जनता बोलती है, ये हमारी रिपोर्ट में पूरा का पूरा क्यों वोट किया, कैसे किया, ये सारी चीजों की चर्चा है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको उन तक पहुंचना है, राइट डेमोग्राफी को, उनको कनेक्ट होना है। जब तक आप इस लेवल पे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक वाटर फ्लो नहीं होगा, यानी कि इनसाइड फ्लो नहीं होगा, और उसके बाद जो भी उन्होंने कहा उसको राइट अनबायस तरीके से, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपके न्यूज मीडिया में कि सच दिखाए बिना छुपाए, हाँ हाँ तो उसकी रिपोर्ट करनी है बिना किसी बायस। प्रदीप जी, रिजल्ट कम। you know interestingly it takes a lot to say that there'll be a landslide victory. In 2019 I remember you said that for Haryana बहुत सारे लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रिडिक्ट किया, आपने हंग असेंबली किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा रिजल्ट क्या हुए। चलिए 2024 की बात करिए। क्या कर्नाटका का असर ऑप्टिक्स वाइज तो शायद ये पड़ेगा that the opposition will come together, there'll be Philip, Congress will be seen as a fulcrum of opposition unity. What is your prediction? Will Karnataka have any impact on the national picture? No, none of the state outcome or result have any bearing on Lok Sabha election. जैसे मैंने कहा कि हर इलेक्शन अपने आप में अलग है। लोगों को ये पता है कि नगर पालिका के म्युनिसिपल इलेक्शन में किसको चुनना है, असेंबली में किसको चुनना है, और जनरल इलेक्शन लोकसभा में किसको चुनना है। उसके बड़े बड़े, मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई मत मानिए, आपके सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आप दिल्ली असेंबली का ले लीजिए, 14 का भी ले लीजिए, 19 का भी ले लीजिए। 19 का भी है जी। एक होती है जीत और हार, और एक होती है इंटेंसिटी ऑफ विक्ट्री और लॉस। आप देखिए कि 70 सीटों में से 67 सीटें लाने वाली पार्टी, या 70 सीटों में से 19 में 62 सीट्स लाने वाली पार्टी को 0 सीट मिलती है लोकसभा, या नॉट इवन सेकेंड नंबर पे भी नहीं आते। आप देखिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा में एक सीट मिलती, एक सीट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एक सीट, और राजस्थान में 0 सीट। That's right. तो लोगों को, जैसे मैंने कहा कि किससे क्या चाहिए और कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है, वो बड़े अच्छे से आकलन करते हैं। तो 24 की जी 24 की जहां तक बात है कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप जाइए, कॉन्टेस्ट में जाइए, स्पोर्ट्स हो, इलेक्शन का एरिना हो, तो जब तक 2-4 कंटेंडर नहीं होंगे, सामने नजर नहीं आएंगे, तो अभी जो है आपको वही नजर आएगा नेचुरली। तो जैसे मैंने कहा कि सारा खेल जो है वो आप अल्टरनेटिव्स का होता है, कि जो अल्टरनेट है उन 2 में से या 3 में से एक को मुझे चुनना है, एंड व्हाटएवर इज बेटर एंड क्रेडिबल, लोग उसके हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं। एंड क्रेडिबिलिटी कम्स आउट ऑफ योर ट्रैक रिकॉर्ड ओनली। ऐसे तो कहीं से पैकेजिंग या प्रमोशन से तो क्रेडिबिलिटी नहीं आती है, वो तो आपके परफॉर्मेंस से ही आती है। या फिर आपकी क्लीन स्लेट हो कि कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, जब नई पार्टी इमर्ज होती है, तो उस बंदे में या उस पार्टी के अंदर लोगों का कन्विक्शन देखते हैं कि इनमें कितनी दम है यार, ये जो अपनी बात कह रहे हैं नए लोग जो आए हुए। बट उसके लिए भी एक बड़ा प्रोसेस होता है। जैसे हम और आपको ग्रेजुएशन करने के लिए लाइफ के 12 वो 12th स्टैंडर्ड के और 3 साल ग्रेजुएशन के 15 साल बिताने पड़ते हैं, वैसे ही जब आप एंट्री करते हैं किसी भी चीज में,
तो आपको उतना समय निकालना पड़ता है कि आप बोल सके कि जी हाँ मैं ग्रेजुएशन हूँ। आप आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए, 13 में चालू करके उन्होंने सरकार पंजाब में अभी 22 में बना पाए, 9 साल तो उसमें भी लग गए टेक्नोलॉजी के समय में भी। और बाकी जगहों पे अब ट्राई कर रहे हैं, और वो भी रिलेटिवली स्मॉल स्टेट्स है, आपके विद इन रीच है। और दिल्ली की बात करें तो इट्स लाइक अ सिटी। तो वो सारा का सारा समय लगता है। So in 2024, again, you are saying because it's alternative. Is there an alternative to Prime Minister Narendra Modi? नहीं, अल्टरनेटिव तो डिपेंड करता है कि अपोजिशन पार्टी जब समय आएगा वहां तक किसको प्रोजेक्ट कर पाने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अभी तो सामने अल्टरनेट कोई अपोजिशन ने लेके ही नहीं आए। जब तक एज ए इंडिविजुअल और एज ए पार्टी ऑल्सो, बोलते ना एक ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप पार्टी एज ए ग्रुप कोलेशन ऑफ मेनी पार्टी या मल्टीपल पार्टी अपोजिशन, यदि खुद भी नहीं है, वन ऑन वन नहीं है तो भी। तो जब तक वो क्रेडिबल ग्रुप या चेहरा नहीं आएगा तो तब तक जो है हम और आपको वही नजर आएगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा हारेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं जो देख पा रहा हूँ या आप देख पा रहे हैं वो तो वही देख पाएंगे जो सामने लगा हुआ है बोर्ड पे, और जो लगा हुआ है वो तो सबसे अच्छा है, ऐसे माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीत रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जब तक क्रेडिबल अल्टरनेट नहीं आएगा तो सामने जो है वही सबसे। प्रदीप जी, आपने बोला कि कोई भी स्टेट में आपका काम 1 साल पहले शुरू हो जाता है, तो अभी जो 3 चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई डायरेक्शन कुछ समझाइए कि क्या होने वाला है। I know you will not hazard a guess. You are someone who's extremely cautious, but still give us a sense of what is happening. नहीं, देखिए वही अल्टरनेट की कहानी जो है, और सेकंड मैंने कहा वादे दावे इरादे, उसका मतलब ही वही, बस 3 ही लोग होते हैं और चौथा कोई नहीं होता। तो आज की डेट में इन 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से केवल मध्य प्रदेश में जो है वो बीजेपी की सरकार है, और बाकी 2 तेलंगाना और मिजोरम में रीजनल पार्टी की है, और 2 जगहों पे कांग्रेस की सरकार है। तो कह सकते हैं उस लिहाज से कि केवल एक स्टेट में बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह अपोजिशन पार्टी की है। तो नेचुरली जो एंटी इनकम्बेंसी उसी हिसाब से प्ले करती है, जैसे मैंने बताया। और जो पिछले 10 चुनाव हुए 1 साल में, और आने वाला चुनाव अलग हो जाता है वही परफॉर्मेंस के लिए। 10 में से 8 सरकारें रिपीट हुई है 1 साल के, और अब ये मान लीजिए 11वां चुनाव हुआ जिसमें आप 3 कह सकते हैं, 8/3 का रेशो। केवल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक के अंदर सरकार चेंज हुई, बाकी सब जगह रिपीट हुई। तो वही अल्टरनेट की कहानी है। तो तीनों स्टेट या चारों स्टेट की बात कर ले तो कांग्रेस के लिहाज से देख लीजिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जो क्रेडिबल फेस है, जैसे सिद्धरामैया जी यहाँ पर थे, 5 साल काम किया, और वो उन्होंने जनता ने उनके समक्ष वो पाया कि ही इज बेटर प्लेस देन अदर 3 चीफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे गहलोत साहब, बट वहाँ पे ट्रेडिशन ये है कि हर 5 साल में बदल जाती है सरकार। राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये देखना है कि बीजेपी के पास भी क्या अल्टरनेट है। यहाँ पे बीजेपी को देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या अल्टरनेट है। कांग्रेस के तो ठीक है जो है सो है, लेकिन बीजेपी को यहाँ बताना पड़ेगा कि हु इज दी अल्टरनेट, तो उसी हिसाब से जनता उसको सिलेक्ट करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले साल भली बीजेपी उस हिसाब से सरकार ना बनाई हो और हंग असेंबली आई थी, और दोनों का वोट शेयर 41% था, ठीक है। तो शिवराज सिंह इज टू बिग और टॉल अ लीडर, नोन फॉर डिलीवरी, नोन फॉर डिलीवरी। जैसे कि इमेज बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की तरह कहा जाता है, यहाँ उसी तरह से उनके मामा जी की है। मामा की इमेज जो है, मामा की मतलब डिलीवरी करके ही, वो लाडली लक्ष्मी योजना से लेके दुनिया की तमाम योजनाएं, तो ही इज ऑल्सो नोन फॉर दैट। एंड अदर साइड अब कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं है, तो वहां पे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो पुराने कह सकते हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अब वो किसको सामने लाते हैं और वो शिवराज सिंह के सामने कितना होल्ड कर पाते हैं, दैट इज टू बी सीन। सिमिलरली इन छत्तीसगढ़ की बीजेपी कौन लेके आती है और वो भूपेंद्र बघेल के सामने कितना खड़े हो पाते हैं, और वही इट गोज सेम विद गहलोत साहब ऑल्सो।
But one thing is clear, Pradeep ji. नहीं होगा, नहीं होगा. One thing is clear, sir, that आपके सामने कोई नहीं है as far as election prediction is concerned. So, your final thoughts. Is it too much of tension on a night before the results, or even in the morning, say in the initial 2-3 hours? You are talking about result day, or you are talking about exit Yeah, poll? result day. Result day. मैं दो की बात करता हूँ. एग्जिट पोल दिन जो कि हमने नंबर को बोर्ड पे लगाने, यानी असली रिस्क तो तब है, फिर बाद में तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, वो तो मशीन और काउंटिंग जो होगी वो जो होगा सो होगा. सबसे बड़ी चीज है कि आप काम करते हैं और जो नंबर आता है और आपने कितनी मेहनत से काम किया हुआ है, तो उसमें जो है नंबर लगाने में हम कहीं पर भी इतना सा भी बायस या किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेते हैं. और उसका सबसे बड़ा कारण है कि एग्जिट पोल के कम से कम एक वीक पहले मैं टीवी देखना बंद कर देता हूँ. मुझे कुछ नहीं पता. So that nothing influences you. मुझे सिर्फ उतना ही देखना है कि लोग यानी पब्लिक क्या कह रही है जिनके साथ हमने कनेक्ट किया. और एग्जिट पोल के दिन सुबह से शाम तक मेरे पास एक ही फोन है, वो मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ. तो वो दिन जो होता है मेरे लिए लाइफ का सबसे सुकून चैन का दिन होता है. तो जो बोलते हैं ना कि सामने साइड स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आता, तो आप जितने अच्छी तरीके से हिट लगा सकते हैं लगा दीजिए, वो मैं लगा देता हूँ. रह गई बात रिजल्ट की, जो जब इतनी मेहनत की करते हैं सारे एक्सिस माइंड इंडिया की टीम, मैं अकेले नहीं, सबसे ज्यादा तो वो मेहनत करते हैं. मैं तो उठा के नंबर केवल बोल देता हूँ. तो जो एक्सिस माइंड इंडिया की टीम है, फुल क्रेडिट गोज टू देम. वो जमीन पे इतनी मेहनत करते हैं, इतने दिनों तक मार खाते रहते हैं लोगों की, इतने बार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं. बंगाल के अंदर तो 10 दिन जलपाईगुड़ी में पुलिस स्टेशन, जेल के अंदर. तो फुल क्रेडिट गोज टू देम. अब उन्होंने जो भी कुछ काम किया है, आपको अच्छे से बिहार 15 का भी अनुभव है, तो मैं उनके अगेंस्ट या उनके विपरीत तो कभी नहीं. 2020 का भी अनुभव है, मतलब 20 का भी अनुभव है जी. लेकिन हाउ डू यू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी? दैट्स माय फाइनल क्वेश्चन टू यू. हाउ डू यू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन दिस एंटायर प्रोसेस? इसी के चलते टू मेंटेन दिस वेरी एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रलिटी हम ओपिनियन पोल नहीं करते. कि भाई मैं कहता हूँ अब तो सब कुछ बंद हो चुका है मशीनों के अंदर, अब जो उसमें आया है उसको मैं रिपीट करूंगा. और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी जितने भी मेरे मीडिया इंटरेक्शन या मैं कहीं पर भी आके पब्लिक में मैं बोलता हूँ, मैंने आज तक किसी के बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं. बस मुझे मेरे पेरेंट्स ने यही चीज सिखाई, यार पॉजिटिव अच्छी चीजें देखो, बुरा तो होता है, होते रहेगा, उससे आपका क्या लेना है. अच्छे से आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे, तो दिक्कत क्या. तो बस न्यूट्रल हो जाती है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अक्रॉस द बोर्ड आके ये नहीं कह सकता कि प्रदीप गुप्ता ने ये गलत बात की. तो न्यूट्रलिटी. So certainly, this conversation has been full of learning. You have again broken several myths and narratives about the Lingayat votes, about the Vokaligas, and what is the reason behind Congress Party's victory. Always a pleasure to speak to you. So thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you very much.